सेक्टर 26 की मंडी के व्यापारी दो फाड़। सब्जी मंडी और अनाज मंडी के व्यापारियों ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। सब्जी मंडी व्यापारी बोले उन्हें यहां से हटाने की रची जा रही साजिश। हाई कोर्ट के आदेशों को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा लागू। सेक्टर 26 की मंडी में सब्जी मंडी में व्यापार करने वाले खासे परेशान हैं। वजह है हाई कोर्ट का आदेश। हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, वहां की सड़कों की हालात ठीक किए जाएं ताकि लोग आराम से आ जा सकें। उसके बाद मार्केट कमेटी ने वहां इस तरह के कानून बना दिए कि अब रेडी फड़ी वाले तो दूर, वहां व्यापार करने वाले भी व्यापार करने से कतराने लगे हैं क्योंकि उन्हें हर दिन परेशान किया जाता है। अब इन लोगों का यह कहना है कि आदेश कुछ और थे और इंप्लीमेंट कुछ और हो रहे हैं, जिससे उनका व्यापार खराब हो रहा है, उनकी रोजी रोटी छिनने लगी है। वहीं दूसरी ओर इनका यह भी कहना है कि गाज सिर्फ गरीबों पर चलती है, जबकि वहां अनाज मंडी में करोड़ों के शोरूम खरीद कर लोग बाहर रिटेल में राशन बेच रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं रोकता। क्या वे अतिक्रमण नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज सब्जी मंडी के कई लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। सर बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुपिंदर है जी। भूपिंदर जी बताओ क्या समस्या हाँ जी, ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸੜ ਗਿਆ, 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 3-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਲੱਕੜ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਦੀ ਰੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਆਪਣਾ ट्रैफिक पुलिस ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्या वजह क्या है इसकी? कौन लोग परेशान कर रहे हैं? ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਕੈਮਰੇ की तरफ। और बल्कि जो साडा नारियल आंदा जी बंद गड्डी च आंदा जी, बंद गड्डी च असी बेच देंगे जी। उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, ना पब्लिक नूं ना किसी नूं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ फीस मार्केट कमेटी नूं ਅਸੀਂ फीस दे रहे जी, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਲ 'ਚ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਦੇ ਜੀ ਐਮਸੀ ਤੋਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰੀਅਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਐਮਸੀ ਨਾ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵਿਕੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਕੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਕੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਤੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੀਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। क्या वजह बता रहे हैं इसके पीछे? ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 60 ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ, 2% ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੈਨੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ। 8000 ਰੁਪਏ 9000 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਜਾਏ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵੇਚੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, 10 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? आपका भी यही काम है जी? मेरा भी यही काम है जी नारियल का। जब से मंडी में लगा रहे 7-8 साल से, जब से फीस चालू हुई हमें घोड़ा पार्किंग में जगह दी गई, वहाँ पे हम लोग नारियल बेच रहे थे। अब क्या करें, इन्होंने गार्बेज की हाई कोर्ट के ऑर्डर से सफाई के, इन्होंने हमारी सफाई कर दी। मार्केट कमेटी में मीटिंग हुई थी, पवित्र जी हैं, उनसे बात हुई थी, वो बोले भाई हमें फीस नहीं चाहिए, तुम यहाँ से नारियल लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी। मैं कहा जी इंक्रोचमेंट तो इन लोगों ने करी है, देखो ये लाले लोगों ने, इनका कुछ नहीं कर रहे आप लोग, ना इनकी फड़ी हटा रहे हो। जब यहाँ पे क्या नाम स्टेट वाले आए थे तब भी इन्होंने तोड़ फोड़ नहीं करी, देख देख के करी उसकी तोड़ फोड़ भी। जहाँ खाली जगह वहीं कर दी नाम बस। प्रधान लोग आए, लालों को हाथ में पाया ले गए,
मेरा कम से कम 20 लाख का नुकसान हो गया ना ज़्यादा। 3-3 4-4 गाड़ी आ रही है, मार्केट कमेटी में एंट्री है। हम लोग किसी आड़ती के थ्रू काम करते हैं, चाहे फीस तो दे रहे हैं ना प्रॉपर, अगला फीस बनाता जो बनती है हम लोग देते हैं। ये मंडी में काम करने वाले नारियल के जो व्यापारी हैं वो हैं, इनका कहना था कि 2 महीने से इनका काम का जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। प्रशासन नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पर नारियल बेचें, जबकि साल का 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया इनका रेवेन्यू जो है वो मार्केट कमेटी को जाता है। बहरहाल इनका ये कहना है कि जब अनाज मंडी के करोड़ों के शोरूम लेकर लोग बाहर राशन बेच सकते हैं तो हम लोग वहाँ पर नारियल क्यों नहीं बेच सकते। इन्हीं सारी बातचीत के लिए हमारे साथ अमन सूद जी मौजूद हैं। अमन सूद जो कि एक सक्रिय आड़ती हैं मंडी के, सब्जी मंडी के, इससे पहले भी काफ़ी सक्रिय रही है, कानूनी रूप से भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है आड़तियों के लिए। आज हमारे बीच में है। स्वागत है सर आपका अमन जी। नमस्कार जी। अमन सूद जी, आप हमें ये बताएं, ये जो छोटे व्यापारी हैं जी, जो नारियल का काम करते हैं या केले का काम करते हैं, पपीते का काम करते हैं, या जो रेडी फड़ी वाले हैं उन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया, बताएंगे इसकी वजह क्या रही? क्योंकि ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा कि कामगारों को वहाँ से हटा दिया जाए। बिल्कुल सही बोला है हंडा जी आपने। जो भी कार्रवाई इन्होंने की है जी वो ठीक की है, और उन्होंने सफाई की कार्रवाई करनी थी। जी सफाई की कार्रवाई करते करते इन्होंने आड़तियों की ही सफाई कर दी है वहाँ। जी ये आड़तियों को वहाँ पर काम नहीं करने दे रहे। गाड़ियाँ आती हैं, इनको रेवेन्यू पूरा चाहिए, पर काम के लिए ये ज़ीरो है। जी ये कहते हैं कि आपका नारियल यहाँ नहीं बिकेगा, पर आपको मार्केट फीस देनी पड़ेगी। जी तो इस करके हम बड़े परेशान हैं। पहले हमारे को जगह दी गई थी घोड़ा मंडी में, जी 2019 में दी गई थी, 20 में जब वो कोरोना लगा था, तो आप उनको हमारे को स्पेसिफिकली कहा था कि आपके ऊपर 2% मार्केट फीस लग गई है, तो हम आपको यहाँ पर सेटल कर रहे हैं। जी तो इन्होंने हमारे को वहाँ पर सेटल कर दिया और हमारे से रेगुलर फीस जा रही है। जी एक एक आड़ती इनको लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपया महीना इनको फीस दे रहा है। उसके बावजूद रोज़ ये हमारे को प्रशासन हमारे को वहाँ पर तंग करता है, हमारे को गाड़ियाँ नहीं लगाने देता, हमारे वहाँ पर चालान कटाए जाते हैं और रोज़ ना रोज़ हमारे से बहसबाजी करते हैं। जी उसके बाद हमारी गाड़ियाँ सड़क पे आती हैं, सड़क पे हमारे को पुलिस वाले तंग करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी करनी। जी हम इस बात से परेशान हैं कि हम अपना माल किसको बेचें और कहाँ बेचें। इसका प्रशासन के पास कोई अभी तक हमारे को जवाब नहीं मिला। सूद साहब, ये भी इन लोगों का कहना है कि जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े आड़ती हैं जो अनाज मंडी में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ इंक्रोचमेंट की भरमार है, जो कि करोड़ों रुपए का शोरूम लेकर अपनी दुकान के बाहर जो है वो परचून बेच रहे हैं, जबकि कानूनी वो परचून का कारोबार नहीं कर सकते। इस संबंध में उनका ये कहना है लोगों का, वहाँ पर हम गए थे, हमने बातचीत की लोगों से, वो कहते हैं कि उनको कोई नहीं हटाता तो हमें क्यों हटा रहा है। क्या इस तरह का भी कोई सिस्टम वहाँ पर है कि जो आड़ती बड़े हैं उनको नहीं हटा रहा, या उनकी कोई सांठ गांठ है? बिल्कुल, अगर आप इसको बिल्कुल कायदे से देखें तो आपको आप ये देखेंगे कि हमारे 178 या 170 आड़ती लाइसेंस है जी, जबकि दाना मंडी के अंदर 10 या 12 लाइसेंस ही हैं। इनको हर सुविधा चाहिए, इन्होंने सारी इंक्रोचमेंट कर रखी है। आप कभी भी वहाँ पर जाके मुआयना करेंगे तो आप यही देखेंगे, इन्होंने अपनी दुकान के आगे 10-10 फुट आगे तक सड़क घेर के रखी है। वहाँ पर ये अपना डिस्प्ले करते हैं और सड़कों पे खुद जाके माल बेचते हैं। 8-8, 10-10 करोड़ के इनके शोरूम हैं, फिर भी माल जो इन्होंने है वो सड़कों पे बेचना है। अपनी जो सड़कें हैं उसके आगे इन्होंने परचून में दुकानें लगा रखी हैं। आप 1 नंबर चक्की, 2 नंबर चक्की, 3 नंबर चक्की देख लीजिए, उधर 52 नंबर दुकान से लेकर कहीं पे भी देख लीजिए, आपको सारी परचून की दुकानें मिलेंगी। जबकि ये ग्रेन मार्केट है, होलसेल मार्केट है। हमको आज तक ये नहीं समझ आया कि ये होलसेल मार्केट रिटेल मार्केट कैसे बन गई और प्रशासन ने इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक। इनका प्रशासन का इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये इन लोगों की शिकायत, जो मंडी में, सब्जी मंडी में काम, उनकी शिकायत कर कौन रहा है प्रशासन को? कौन नहीं चाहता कि ये लोग काम ना करें? ज़्यादातर ये जो जितने भी रिटेलर्स हैं, जो बड़े आड़ती हैं, दाना मंडी के रिटेलर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि सब्जी मंडी वाले यहाँ ना आए, जबकि अगर सब्जी बिकेगी तब वो आगे काम चलेगा। क्योंकि जो सब्जी लेने आता है वो अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाता है जी। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके काम करें, पर वो नहीं चाहता कि हम उनके साथ मिलें। तो प्रशासन से आपने इस संबंध में कोई बातचीत की अधिकारियों इस से? संबंध में हमने पवित्र सिंह जी हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे भी बात करी। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है, पर वो यही हमारे को हर बार जब भी हम मिलते हैं हमारे को यही कहते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमने उनसे बात करी थी कि आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की मैनिपुलेशन करी है, इम्प्लीमेंटेशन आपने ठीक नहीं किया है। इस पर सिर्फ यही लिखा है कि आपने वहाँ पर सफाई की व्यवस्था करनी है, ना कि आपने आड़तियों को वहाँ से हटाना है, क्योंकि आड़ती ही है जो आपको रेवेन्यू दे रहा है। तो फर्दर क्या एक्शन रिटेलर रहेगा आपको आपका? रेवेन्यू नहीं दे रहा है।
फर्दर आपने क्या सोचा है, क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि काम तो वो करने नहीं दे रहे, लाखों का नुकसान हो चुका है। देखिए जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते देखेंगे। जी। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो आने वाले टाइम में हम मंडी भी बंद करेंगे और प्रशासन से के खिलाफ भी जाएंगे जी। और कोर्ट में भी अपील करेंगे कि इन्होंने गलत तरीके से आपकी इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट के ऑर्डर्स की है। जी, तो ये अमन सूद थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि मंडी में किस तरह एक जो है वितकरा किया जा रहा है, दो पक्षों में एक पक्षपात किया जा रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें वहाँ से हटाने की एक साजिश रची जा रही है, ताकि बड़े जो दाना मंडी वाले हैं वो अपनी इंक्रोचमेंट जारी रख सकें। और इस संबंध में बहुत जल्द इन्होंने कहा है कि वह मंडी तक बंद कर देंगे, क्योंकि इन छोटे जो कामगार हैं, इनके साथ पल्लेदार भी हैं, इनके साथ वहाँ पर लेबरर भी है और भी काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पर अपना जो जीवन व्यापन वो करते हैं, काफ़ी पिछले लंबे अरसे से कर रहे हैं और 2% मार्केट फीस भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इतनी बड़ी करोड़ों की फीस देने के बावजूद इन्हें यह कहा जा रहा है कि आप मंडी में काम नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर मार्केट कमेटी के प्रशासक पवित्र सिंह का कहना था कि वे हाई कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के समय इन लोगों को घोड़ा पार्किंग की अस्थायी रूप से जगह दी गई थी, लेकिन अब कानूनी तौर पर वो जगह खाली करनी होगी। इसलिए जिस जगह पर ये पहले काम कर रहे थे वहीं इन्हें काम करना होगा। रही बात जगह कम होने की, तो उसके विकल्प के लिए इन्हें सेक्टर 39 में जीरी मंडी में जगह दी जा रही है। अगर चाहें तो वहां जाकर ये अपना धंधा चला सकते हैं। इसी समस्या को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाज़त और आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।